Actually, Teresa, my colleagues, ladies and men, the 20 years have gone by. This institution, High Court of Uttarakhand, came into existence. And of course, our bar, as it was then a very young bar, over the time, over the years, it has progressed tremendously. But still, there is some deficiency. And the deficiency was because of the infrastructural facilities, which otherwise would have been available to a high court, highest institution of a state. Therefore, since the time limitation is there, I would not say anything much in detail, but as per my understanding and the vision which I visualize, if I get the constructive support of all the bar members, I would endeavor myself to provide. First thing was the infrastructural facilities, which is up to the standard of High Court, is lacking a little bit. In infrastructural facilities, I would not go in details of everything, but say these are some infrastructural facility in each and every institution, including mostly courts, the chambers for the members, the conference rooms for the members, the compatible places for the clients, and the infrastructure for client and advocate relationship. Since I have seen in various other high courts and including the apex court, the bar provides to its member those minimum facilities. So my endeavor would be to somehow put my efforts with your constructive support, and all decisions would be taken in the general body meetings. Second, since time constraint is there, I'll just be brief. Second thing is the registry, which is our main job. The all, from time to time, what you got, the problems which is faced by this community is the filing, hearing, so many other things are there, which from time to time one has to face. That problem would also be solved with the suggestion of the general body, and then the office bearer, through office bearer, we will try, since I am of the opinion, these are two sides of a coin, the bench and bar. If a bar is healthy, if a bar is a little bit prestigious, the bench, it also reflects on the bench. So therefore we will try with the consultation with the bench that our this facility also, whatever day-to-day problem with the registry is there, we'll try to solve and get your opinion from time to time. And then we'll approach with this suggestions of general body to the honorable courts, honorable Chief Justice and the judges concerned or various committees, and try to resolve those. Third thing, I'll put some emphasis on the welfare schemes. There are courts, like in Delhi, now NCT Delhi, there's already a proposal, they have already acted upon it. Like our profession is very hard profession, we have to round the clock, we have to do so many things. You have to have a ledger with your client, then you have to prepare it, file it, have a ledger with your registry, then go before the courts. So many other problems are there. So therefore, and that entire, we are round the clock, except 6-7 hours you sleep in this thing. Otherwise, I keep on telling to my clients that you are sleeping, snoring, but I am reading your brief.
Next day you are sleeping till 8 o'clock, I'm 5 o'clock up. So therefore the third problem, which we would say that this group insurance, so to ensure that every member in situation of some eventuality that he must be secured. I will try to find out some corpus, and so that each and every member is secured to some extent, depending upon the corpus which you can fetch from various sources. And lastly, since there is already one buzzer is already there, and lastly, over the years, what I feel that the interaction with the pension bar is not proportionate. That proportionality has to be bring in, and that would, for that purpose, as I was proposing, we will create many committees of seniors, juniors, from all startup, all levels of lawyers. We will have different committees for different purposes: debating committee, cultural committee, then the interaction committee. Decision taking will be all in general bodies. So therefore, this is some in substance which I propose to do if I get your constructive support, and we all must involve ourselves in bringing up the standard of a high court and lawyer of a high court. We are otherwise very intellectual community, and this institution is above than the government. See the power of the institution, but that power has to be the people, those who are involved in this institution, they have to elicit that power. And that power can be elicited only after once we are unanimously work for the betterment. With these words, I'll conclude my Thank you very much, sir. Now, I would request Mr. Bhaswanan Moleki to please come and address the gathering. आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय सीआरओ महोदय, सीनियर एडवोकेट्स, लेडी एडवोकेट्स और मेरे इस बार के यूथ मेंबर्स, मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं हमारी सीआरओ टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में, कोविड के काल में आप इतने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया का निष्पादन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, बाढ़ के विकास की बात है, तो ऐसा नहीं है कि पिछले 20 सालों में बाढ़ में कोई विकास नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। हमारे पूर्व अध्यक्ष बहुत सारे, सभी के काम में, सभी के कार्यकाल में कुछ ना कुछ विकास हुआ। हम लोग पेड़ के नीचे अपनी किताबें, फाइलें रखते थे और वहां से हम चैम्बर्स तक आए। आज हम इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं। तो ये विकास है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्षों में कुछ ना कुछ उनके कार्यकाल में हुआ है। तो इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। और मेरा यह प्रयास रहेगा, अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस विकास की प्रक्रिया को और आगे और तेजी से ले जाऊं। इसके साथ ही जहां तक समस्याओं की बात है, बात आती है समस्या। अब देखना यह है कि वो समस्याएं हैं या वो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं। यहां कहा जाता है कि ऊपर चैम्बर्स बिल्डिंग में सफाई नहीं हो रही। आजकल ये स्थिति है, बहुत गंदा है, सफाई नहीं हो रही। तो क्या ये समस्या है? ये दिक्कत है। ये सफाई तो रोज होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। ऊपर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ये समस्या नहीं है, ये दिक्कत है, रोजमर्रा की दिक्कत है। क्योंकि हम उसे समस्या के तौर पर लेते हैं और एक चुनावी मुद्दा बना देते हैं। कोई मुद्दा नहीं है, ये होना चाहिए, रोज का रोज होना चाहिए। लेडीज कॉमन हॉल, वहां साफ सफाई नहीं होती, ये दिक्कत है जो रोज होनी चाहिए साफ सफाई। जहां तक चैम्बर्स की बात है, चैम्बर्स का निर्माण शुरू हो चुका है। तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके चैम्बर्स का निर्माण हो, और जो पात्र लोग हैं
जो यहाँ के रेगुलर प्रैक्टिशनर लोग हैं, ये नहीं कि बाहर से कुछ लोग आए उनको चैम्बर अलॉट हो गया और यहाँ के जो युवा अधिवक्ता हैं उनको चैम्बर का अलॉटमेंट नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के युवा अधिवक्ता हैं उनको चैम्बर का अलॉटमेंट हो, और जो योग्य हैं जो यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को नहीं कि अचानक आए और अपनी सीनियरिटी के आधार पर बाहर प्रैक्टिस करना, यहाँ एक चैम्बर अलॉट कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। और इस कोरोना काल में हमने बहुत कुछ दिखाया। हमारे एक साथी अधिवक्ता की मृत्यु हुई है, हमारे एक साथी अधिवक्ता उनके बेटे की मृत्यु हुई, और एक हमारे साथी अधिवक्ता मंगल सिंह चौहान काफी बीमार रहे। तो इन सबसे हमें कुछ सीखने को मिला कि हमारी बार में एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि अगर कोई बीमार हो तो उसकी कुछ मदद की जा सके। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि होता यह है कि हर बार वादा किया जाता है कि हम एक मेडिकल इंश्योरेंस करेंगे, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें कोई ना कोई एक निश्चित व्यवस्था करनी ही होगी। या तो हम ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं, या हम बार में ऐसी व्यवस्था करें। हमारी बार में एक व्यवस्था है कि अगर कोई बीमार होता है उसको 40,000 रुपए दे दिए जाते हैं। अगर हम उन्हीं 40,000 हजारों को हम ये, क्योंकि यहाँ मीटिंग होती है तो होता ये है कि इंश्योरेंस वाले आते हैं, वो योजना समझाते हैं, वहां 10 आदमी भी नहीं होते और वो योजना जो है हटाई में पड़ जाती है। तो हमारा मानना ये है कि वो पैसा बाहर से दिया जाना चाहिए और हर व्यक्ति का, हर जितने भी बार के मेंबर हैं उनका ग्रुप मेडिकल बीमा होना ही चाहिए, जिससे कि ये ऐसी समस्याएं जब भी कोरोना काल में जैसा हुआ है, ऐसी कोई मुसीबत आए तो हर अधिवक्ता को एक मदद मिल सके। इसके अलावा आप लोग इस हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष को चुनने जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अध्यक्ष कैसा होना चाहिए ये आप विचार करेंगे, अपने दिल पर हाथ रख के विचार करेंगे कि अध्यक्ष कैसा चाहिए। क्या आप उसे इजीली अप्रोच कर सकते हैं? क्या आप उससे सीधे सीधे मिल सकते हैं? कभी भी मिल सकते हैं? यह आपको देखना होगा। अगर आप आज की तारीख में अगर आप किसी से मिलने में भी झिझक रहे हैं तो अध्यक्ष बनने के बाद में आप उससे क्या मिल पाएंगे? तो आपको देखना होगा कि आप उसे मिल सकते हैं, उसे अप्रोच कर सकते हैं और अपनी समस्या उसे खुल के बता सकते हैं नहीं। जहां तक बार और बेंच के संबंधों का सवाल है, मेरा मानना यह है कि बार और बेंच के संबंध कॉर्डियल होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, टकराव की स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। बार और बेंच के संबंधों में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, और अगर कोई टकराव की स्थिति आती है तो उसे बैठ के समस्या का समाधान हो सकता है। जो वैकल्पिक, अगर कोई आपको विकल्प चुनना है तो बाद में भी चुना जा सकता है, सीधे सीधे नहीं कि हमने बार से टकराव की स्थिति ली, क्योंकि टकराव की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो स्थापित अधिवक्ता का नहीं होता है, युवा अधिवक्ताओं का होता है। स्थापित अधिवक्ता तो अपना काम कर लेता है, चला लेता है, उसके पास तो जितने मुकदमे उनमें से एक अगर खराब भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन युवा अधिवक्ताओं के बारे में सोचिए जिनके पास में महीने में 1 या 2 मुकदमे आते हैं, वो भी खराब हो जाए उस टकराव की स्थिति में। समस्या जहां तक है तो सबसे ज्यादा समस्या युवा अधिवक्ताओं के साथ में है। तो मेरा मानना यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। उनके साथ में 2 प्रॉब्लम है। एक पहली प्रॉब्लम यह है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और दूसरी है कि जजेज अगर उनके साथ में कहीं कोई इस तरीके का व्यवहार करें, तो अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा तो जजेज भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। और जहां तक फाइनेंशियल कंडीशन की बात है तो मेरा मानना है कि जितने भी ये इस तरीके के हैं, जैसे एमिकस क्यूरी है, लीगल सेल में अपॉइंटमेंट है, ये जो आर्बिट्रेशन या इसमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं कुछ युवा अधिवक्ताओं के ही होने चाहिए जो नई प्रैक्टिस वाले हैं, जिससे उनको मदद मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Maswara Moleki. Now, in the seriatim third number, I would call Mr. Dinesh Tyagi for addressing the gathering. मान्य सम्मान्य
अधिवक्ता, मान्य सम्माननीय निर्वाचन अधिकारी महोदय और उनकी टीम, सभागार में बैठे समस्त वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे साथी और अनुज साथी। मोदी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और ये सारी समस्याएं हैं। समस्याओं का निवारण और समस्याएं, ये चुनाव के समय पे ही इनका जिक्र होता है। उसके बाद चुनाव हुआ, सब अपने अपने गए। मैं कहानी के जरिए आपसे जुड़ना चाहूंगा। दो दोस्त थे, तो वो अपना काम चलाते थे, लकड़ी काटते थे, शहर में जाते थे। जब वो शहर में जाते थे तो एक दिन जब वो शहर में पहुंचे तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा यहाँ का राजा मर गया है, उसका कोई वारिस नहीं है और उस पे बाज था, वो उड़ेगा, जिस पे भी वो बैठ जाएगा वो यहाँ का राजा बन जाएगा। दोनों साथी थे, एक तेज था, वो चालाक था, एक सीधा था। तेज वाले ने कहा कि चलो हम भी खड़े को देख लेते हैं, शायद वो बाज हमारे कंधे बैठ जाए। बाज उड़ा, वो तेज व्यक्ति जो था उसके कंधे पे वो बाज बैठ गया। वो बात बैठ गया। बात बैठने के बाद वो राजा बन गया, साथी चला गया। उसने राजा बनते ही जनता पे जो उसका स्वभाव था वही अत्याचार शुरू किया, क्योंकि स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। जिसका जो स्वभाव होता है वो वही काम करेगा। उसे राजा बना दो, कुछ भी बना दो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। जब जनता परेशान हुई, उसके बोले इसका कोई सगा है क्या? हाँ। बोले उस दोस्त को बुलाओ इसके। वो दोस्त आया, उनने कहा भाई तू राजा बन गया है, इतने ऊपर आ गया, अब तो तू सही हो ले। बोले ऐसा है, ये इस जनता का भाग्य यही है, अगर इनका अच्छा होना होता तो बात तेरे ऊपर क्यों ना बैठता। तो ये चुनाव है, ये जनतंत्र का बाज उड़ रहा है और आप लोगों को ही ये बात बैठाना है जिसके ऊपर बैठाना है। जिस व्यक्ति के ऊपर जिस आज ये बात बैठाएंगे वो वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और हम यहां सबको जानते हैं, सबका स्वभाव जानते हैं। काम जहां तक करने की बात है, काम इस बात की शक्ति करेगी। प्रेसिडेंट अपने में कुछ नहीं हो सकता, अगर ये बात साथ नहीं देगी प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, कितना ताकतवर आदमी बन जाए। और बात साथ होगी, जिसके भी साथ बात होगी, जिस प्रेसिडेंट के साथ, वो प्रेसिडेंट आपका कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ला सकता है। और मैं यहां से वादा कर रहा हूं, जब तक मैं प्रेसिडेंट रहूंगा कोई भी सरकारी पद नहीं लूंगा, क्योंकि सरकारी पद कहीं ना कहीं हमें कमजोर करता है। रही चुनाव चला जाएगा, हम लोग यहीं रहेंगे। अगर आपने मुझे चुना तो निश्चित रूप से आप ये नहीं कह सकते कि हमने गलत प्रेसिडेंट चुना या ये प्रेसिडेंट कुछ करेगा नहीं। प्रेसिडेंट पहले भी करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बात आज ही नहीं। हर वकील और जूनियर साथी जितने हैं मेरे सुन लें, मैं पूरे कोरोना काल में यही रहा, जबकि जिला मेरा मुजफ्फरनगर है। मैं एक दिन नहीं गया, जिस साथी ने भी मेरे से कोई समस्या कही, मैं उसी साथी की समस्या मैंने सोच ली। जहां तक मेरी हैसियत है, हैसियत से बात में भी नहीं जा सकता। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाया, 24 घंटे में आपके लिए अवेलेबल हूं। कोई भी समस्या, निजी समस्या हो, वैसी समस्या हो, जो भी समस्या जहां तक मैं कर सकता हूं, बार की मदद से या अपने खुद की मदद से, वो मैं करूंगा। और जो मुख्य समस्या है आज जो मैं देख रहा हूं, वो फाइलिंग की है। जो फाइलिंग के रूल्स ये चेंज हुए,
फिर एजेंसी पहले होती थी, तो इस एजेंसी जब हम लगाते थे तो कुछ मुंशियों को मिल जाता था, एक उनके अलग से इनकम हो जाती थी, क्योंकि मुंशी भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो एजेंसी बंद हो गई। वहां जाते हैं, मेंशन करते हैं, स्लिप देते हैं, वो कब केस आएगा कुछ नहीं पता। बार बेंच के संबंध क्या इसीलिए है कि सिर्फ बार ही सम्मान करें, क्या बेंच का कोई कर्तव्य नहीं है कि वो भी बार का सम्मान करें? और अगर टकराने की नौबत आएगी टकराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेलड़े तो मिलेगा ही नहीं, कुछ लड़ना पड़ेगा। कब तक बचेंगे लड़ाई से? नहीं बच सकते। और लास्ट में, हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं। हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वो उनको पार लगाते हैं। Thank you very much, Mr. Tyagi. Now I will request Mr. Parikshit Saini, who is already there. Please welcome Mr. Parikshit Saini. Honorable Advocate General, senior fellow advocates, and my fellow colleagues. I think in 19 years, no introduction of myself is required by you. The first and foremost pain which we are feeling these days is listing of cases. Urgency application system has been abolished and the mention system has been started. And that pain is daily I am having that pain, and that looking after you, you are also facing the same pain. That abolished system shall be started again. Second thing, we don't even have a safe hygienic washroom for our ladies and gentlemen. There shall be. Secondly, another thing is that for the last 1 year we are facing corona. Everything has gone virtual and our bar does not even have a very high speed Wi-Fi connectivity. We are dependent upon the Wi-Fi connectivity of the High Court, which does not open other website except this High Court website. Again, I am there with you all, fellow colleagues, from 10 a.m. to 4 p.m. in the corridor of the court. There shall be a regular rotation of the jurisdiction of the courts, which is required. हमने देखा लास्टली बहुत दिन तक एक ही जुरिडिक्शन चलता रहा, एक ही कोर्ट एक ही जुरिडिक्शन को कैरी ऑन करती है। There shall be a regular rotation of the benches as regard to the jurisdiction is concerned. तीसरा, एक हमारे यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी बहुत खराब है, जिसके लिए हमें इधर उधर जाना पड़ता है। एक हमारे पास एक ऊपर कैंटीन है जो आई कैन नॉट से सेफ और हाइजेनिक। दूसरा, to give respect to the senior advocates of this court, we shall have a separate place for our senior advocates where they can sit and meet the fellow colleagues. दूसरा, मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे, मैं आप सबके बीच में हूँ 19 साल से, आप ही के साथ कोर्ट में ही रहता हूँ। मेरे से मिलने के लिए किसी को बार ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके साथ 10 बजे से 4 बजे तक कोर्ट के कॉरिडोर्स में रहता हूँ। आपकी कोई भी समस्या होगी वो वहीं दूर करने की कोशिश की जाएगी। और जो फाइलिंग के इश्यूज आर मेड सो कॉम्प्लिकेटेड इन लास्ट 2 months, दिस शैल बी मेड कॉम्प्लिकेटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द बार। ये फॉन्ट होगा, ये पेपर का साइज होगा, ऊपर 2 इंच होगा, नीचे 4 इंच होगा, लीगल पेपर होगा, A4 होगा, दोनों साइड होगा। दोनों साइड पेपर अगर यूज करेंगे तो हर एडवोकेट को 50-50 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, क्योंकि जो प्रिंटर की कॉस्ट है वो 35,000 ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है। जूनियर्स तो कर ही ना पाते। तो दीज जो इश्यूज फाइलिंग को लेकर इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए, जिसे हम सब रोज फील कर रहे हैं। क्लर्क्स उस चीज से आदी नहीं हो पाए कि कैसा पेपर होगा, ऊपर कितना होगा, 17 इसका फॉन्ट होगा, 15 इसका होगा, ये उसकी लैंग्वेज का कैप्शन होगा। दीज ऑल थिंग्स शैल बी मेड, थोड़ी फ्रीली करी जाए, वो थोड़ा फ्रीली हो, इजियर हो। और पढ़ना ही तो है कागज को,
किसी भी फॉर्म में पढ़ लिया जाएगा वो। टाइम्स रोमन की रिक्वायरमेंट क्यों? तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो बार के साथ कंसल्ट करके ही हाईकोर्ट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। और इससे एकदम समस्या उत्पन्न होती है, जिसे हमने फेस करा। जिनके पास पुराने कागज रखे थे वो क्या करेंगे? इस तरह की समस्याएं जो हैं उन पे ध्यान रखना चाहिए। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबके सहयोग से ही आगे कुछ होगा। सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार जो भी वो कहेंगे उसी अनुसार करा जाएगा। जो कुछ भी फर्दर इंप्रूवमेंट होंगे उसके लिए आप सब फ्री होंगे मुझे बताने के लिए, मेरे मेंबर्स ऑफ द बार को। सो